Abhiraj, please join the meeting. So the next thing is that if the elements given to you that they are in the descending order from 50 to 1, so at that case your root will be 50 and the left child of 50 is 49. Again the left child of 49 is 48. Left child of 48 is 47 and so on. In this case, there will be not even a single element in your right subtree, or there will be not even a single right child. So in that case, we will use the balanced vector trees. Just let me again share you my screen. Yes guys, is my screen visible to you people? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So in this case, we are going to use height balanced trees. Height balanced binary tree. So the height balanced binary tree is the one for which there will be the only height difference between its left subtree and right subtree is either 0, -1 and 1. And this 0, -1 and 1 is known as the height balance factor. तो अगर आपके लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री में 1, -1 एंड 0 से ज्यादा का डिफरेंस आता है, दैट मीन्स योर ट्री इज नॉट बैलेंस्ड, सो वी नीड टू बैलेंस. So for every node, the absolute values of the difference between the left and right subtree's height, it should not be longer than 1. So the AVL tree is the height balanced tree. Height balanced binary search tree. In your AVL tree, it will follow the properties of binary search tree, that the left element from the root of the root should be less and the right element of the root should be greater than root. But with these properties, we are going to take care of the height, that there should be difference of between left and right subtree should be 0, -1 and 1. So this is the balance factor. It should be -1, 0 or 1. So now the AVL trees, these are the self-balancing binary trees. So here, if there are the difference between the heights, then we need to rebalance it by doing the tree rotation. So either we need to rotate your tree to the left side or to the right side. So it may require only a single rotation to make your tree balance, or it may require more than one rotation. So now the height balance factor, how we can find the balance factor of a node? So simply height of your left subtree minus height of your right subtree. Again I am saying the balance factor will be calculated as height of left subtree minus the height of your right subtree. Now let me give you the examples. Let me again share you my screen. Ma'am, Yes. ma'am, I have no any right subtree. Then after what will happen? Sorry. मैम अगर हमारे पास राइट सबट्री नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कैसे हम वही तो बैलेंस हम करेंगे? करेंगे ना, इसको रोटेट करेंगे. That time we ओके are मैम. going to rotate this. Just let me give you the first example. So guys, for example, now all of you are requested to pay here and node. Having some element, for example, 49. Now what will be the height of this tree? अब इसका लेफ्ट सब ट्री कितने हैं? नथिंग. राइट सब ट्री में क्या है? नथिंग. तो इट्स हाइट कैसे काउंट होगी? 0,
minus 0 equals to 0. Understood? Yes, ma'am. Now, Yes. for example, Yes, ma'am. 49. Now this 49 is having one left child. So as this is the binary search tree, AVL tree is the height balanced binary search tree. So the left side of this 49 should be the elements less than 49 and the right side elements greater than 49. For example, here is 25. So what will be the height of this 25? What will be the height of node 25? 1. Why 1? Its left subtree 0, right -1. subtree no minus 1. Listen to me carefully now. Left subtree 0, right subtree 0. So 25 की height कितनी होगी? 0 minus 0 equals to 0. यहाँ पे हम लोग हाइट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसके लेफ्ट चाइल्ड कितने हैं, राइट चाइल्ड कितने हैं, राइट और लेफ्ट सबट्री के बेसिस पे. अब इसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, तो 0 minus 0. Here it is the height of your left child minus height of your right child. The same way for this 49. अब 49 के लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? So here it is 0, 1 minus right side में कितने हैं इसके? So 0. 1 minus 0, ma'am. 1 minus 0 equals to 1. अब now let's suppose यहाँ पे भी एक एलिमेंट है 50. तो सबसे पहले बताओ 50 की हाइट कितनी होगी? What will be the height of 50? 0. 0. So left child 0, 50 का, right child 0 equals to 0. But here for the 49, left child is 1 as well as your right child is 1. So 1 minus 1 equals to 0. 0. तो ये हम लोग उसका बैलेंस फैक्टर साथ साथ में चेक कर रहे हैं. Here what we are going to checking the balance factor. यहाँ पे भी हमने क्या चेक किया है? बैलेंस फैक्टर इज 0, बैलेंस फैक्टर इज 0 and right now here the balance factor is 0. But if this balance factor is rather than 0, minus 1 or 1, any another number, then we need to rebalance this tree. Now again let me give you the example. 1, 2 and then 3. So what is the balance factor of 3? Yes guys, what 1. will be the balance factor of 3? Anyone else? Balance factor of this 3. 0, ma'am. Very good. Abhishek Singh, wrong. Listen to me carefully. Balance factor कैसे निकालना है? Height of left subtree and right subtree. तो लेफ्ट साइड में चाइल्ड कुछ भी नहीं है. लेफ्ट सबट्री 0 है तो 0, राइट सबट्री 0 है तो 0. तो 0 minus 0 equals to 0. Now the balance factor of 2. Left subtree 0, 0 minus 1 equal to -1. right subtree 1. So 0 minus 1 equals to -1. The same way for the 1, left subtree 0, right subtree 0, 1, 2. So 0 minus 2 equals to 2. अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस फैक्टर क्या आया है? 2. But according to the AVL tree, your balance factor should be -1, 0 और 1. अगर इन तीनों के अलावा कुछ भी आएगा, then we need to rebalance the tree. So here we need to rebalance this tree. Understood till now, guys? Yes, ma'am.
So now for the rebalancing मैम of the मैम yes, मैम एवियल ट्री नहीं समझ में आया मेरे को। बजरंग एवियल ट्री मीन्स अ ट्री जिसमें आपका जो हाइट में डिफरेंस -1, 1 और 0 हो सकता है in between its left and right subtrees. अगर यहाँ तक देखो लेफ्ट एंड राइट सब ट्री का दोनों में बैलेंस फैक्टर कितना आ रहा था 0। अगर 0 होता 1 होता -1 होता देन इट्स ओके, बट अगर कोई और नंबर आ रहा है जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है दैट मीन्स दिस इज नॉट द एवियल ट्री। अब हमें इस ट्री को एवियल ट्री बनाना पड़ेगा। So guys, to make any tree into the avial tree or to make any tree balance, we need to do rotations. We need to do rotations. So the very first rotation is the left rotation. The very first rotation is the left rotation. अब ध्यान दो इधर, all of you please pay attention here. लेफ्ट रोटेशन कब होगी? जब हमारे पास इनबैलेंस कौन सी साइड से होगा? इन योर राइट साइड। अब देखो अगर हम देखें यहाँ पे 0, 0 -1, -1, 0 -2, -2। अब यहाँ पे हमारे पास इम्बैलेंस हो रहा है, अनबैलेंस कहाँ पे हो रहा है? हियर। सो नाउ to balance this tree we need to do the left rotation. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? We are going to perform here left rotation. तो बस जस्ट इसको एक लेफ्ट रोटेट कर देंगे। जैसे हम लोग लेफ्ट रोटेट करेंगे इसको यहाँ से, तो हमारे पास रूट कौन सा बन जाएगा? 2। इस साइड पे क्या आ जाएगा? 1 एंड इस साइड पे क्या हो जाएगा? 3। Now again check the balance factor. 1 का बैलेंस फैक्टर 0 -0 0, 3 का 0 -0 3 equals to 0 for the 2, 1 - 1 equals to also 0. Having any kind of doubt कि यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन क्यों की है? This is known as left rotation. जब आपके राइट साइड में ट्री इम्बैलेंस होगा तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट रोटेशन। वैसे अगर 4 रोटेशंस है, अगर आपको ये 4 रोटेशन समझ में आ गई, आपको एवियल ट्री समझ में आ गया। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट हियर? Yes मैम। यस मैम इन सब का एप्लीकेशन क्या है? रोटेट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो जो आपका बाइनरी सर्च ट्री है उसमें क्या करता है, वो बहुत सारी आपकी एक तो मेमोरी कंज्यूम करता है एंड कुछ पोर्शन में आपका जो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है नियर टू योर लीनियर स्ट्रक्चर। जो बाइनरी सर्च ट्री की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की आती है ON, which is near to your linear data structure. And then the second one is the lack of balance. और मैम सेकंड क्वेश्चन इज मैम इसको हम करेंगे क्यों? मतलब कैसे करेंगे इसको? ऐसे तो हमने नहीं तो हम कर रहे बैलेंस फैक्टर्स के थ्रू। जहाँ पे हमारा ट्री बैलेंस होगा हम उसको, अनबैलेंस होगा हम उसको बैलेंस करेंगे। मैम एज अ प्रैक्टिकल इसको कैसे करेंगे हम? एज अ प्रैक्टिकल इसमें प्रोग्राम बनाएंगे। एवरी टाइम जब भी हम लोग न्यू नोड इंसर्ट करेंगे दैट टाइम वी आर गोइंग टू चेक द बैलेंस फैक्टर। इफ इट इज equals to -1, 1 and 0 then it is okay, but if it is not equals to -1, 0 and 1 that time we need to rebalance it. तो जो हम अभी ये रोटेशंस कर रहे हैं सेम इसी अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करेंगे। हेलो मैम। यस मैम ये 0 0 तो मेरे को समझ में आ रहा है कि 0 - 0 मतलब लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री इक्वल टू 0। तो मैम 1 - 1 यहाँ पे आपने क्यों किया? देखो बजरंग यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है? 0 1। इसके लेफ्ट सब ट्री में एक एलिमेंट है 0 1, दिस साइड आल्सो 0 1, दैट इज व्हाई 1 - 1।
देखो यहाँ पे 0 1 और मैम 0 1। वन के नीचे भी एक चार्ज होता था। अगर यहाँ पे चाइल्ड होता तो देखो क्या होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एलिमेंट यस 0 है, मैम। तो इसका क्या होता है 0, ठीक है, इसका क्या होता है 1, इसका क्या होता 1 है 0 1 2, 2 इस साइड से कितना जाता है 0 1, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, इट्स बैलेंस्ड, इट्स बैलेंस्ड। हमें क्या करना है, आपको लेफ्ट सब ट्री में से या राइट सब ट्री में जो भी लॉन्गेस्ट पाथ होगा हम उसको फॉलो करेंगे, वो वाला पाथ फॉलो करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नोड्स हो सकता है यहाँ पे भी कोई एक एलिमेंट हो फॉर एग्जाम्पल। अब हम यहाँ ऐसे थोड़ी ना करेंगे 0 1 2 3, नो, तो या तो हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे या फिर ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, जिस पाथ में हमारे पास सबसे ज्यादा नोड्स होंगे हम वो वाला पाथ फॉलो करेंगे। Now the next rotation is the right rotation. For example, the elements are given to like this 3 2 and then 1. अच्छा, अब यहाँ पे बताओ all of you, what is the height of 1? What is 0. the balance factor? Balance factor of 1 0. Balance factor of 2 1. +1 1. Balance factor of 3 2. वहां पे भी आपके पास एवियल ट्री में 2 आ जाएगा, मतलब हमें वहां से रोटेट करना। ऑलवेज रिमेम्बर दिस, जहां पे भी हमारे पास 2 आ जाएगा हमें वहीं से रोटेट करना है। अब देखो ये लेफ्ट साइड से अनबैलेंस्ड है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको राइट साइड पे रोटेट कर देंगे। सो आपकी रूट क्या हो जाएगी 2, एक सिंगल रोटेशन करनी है राइट साइड पे, दिस साइड 1 and this side 3. Now the next is the double rotation. ये दो तो थी single rotation. Now step number 3 and 4 में हम लोग क्या करेंगे, double rotations. For example 3 1 and then here 2. So guys, what is the balance factor of 2? 0. Balance factor of 1? So simply 0 minus 1. Why 0 minus 1? Because इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है 0 है, राइट चाइल्ड में कितने हैं, एक ही राइट चाइल्ड है, तो 0 minus 1 minus 1 फॉर दी 3। अब देखो 3 के राइट साइड में कुछ नहीं है तो राइट साइड 0 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स है 2, 0 1 2, सो 2 minus 0 equals to 1 हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो ये दोनों एलिमेंट्स 3 के लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे तो 3 के कुछ भी नहीं है, तो 0 1 2 एंड फ्रॉम द राइट साइड यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0। अब यहाँ पे हम लोग जो रोटेशन करेंगे दैट विल बी योर लेफ्ट राइट रोटेशन। मीन्स पहले हम एक लेफ्ट रोटेशन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे राइट रोटेशन। पहले कौन सी रोटेशन करेंगे, लेफ्ट फिर राइट। पहले सबको लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पे, बाद में इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। अच्छा अब बताओ अगर हम इसके लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो कौन सी रूट में क्या आएगा, 1. y1 y2। एक सिंगल रोटेशन करनी है हमने, इसकी सिंगल रोटेशन करनी है, मतलब ये लेफ्ट रोटेशन मतलब यहाँ पे ऐसे। अब हमें इसको लेफ्ट रोटेट करना है तो कैसे हो जाएगा, रूट पे तो हमारे पास 3 ही रहेगा 3। अब 3 का चाइल्ड क्या बन जाएगा 2 एंड 2 का चाइल्ड क्या हो जाएगा 1। इतना समझ में आया।
Yes, ma'am. Anyone is having any doubt? यहाँ पे 2 क्यों आया है? यस मैम। यहाँ पे हमें क्या करना है? द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू अ लेफ्ट रोटेशन। अगर हमारे पास कुछ ऐसा बन के आ रहा है, लेफ्ट के राइट में हमने कुछ इंसर्ट किया है, देखो ये लेफ्ट सब ट्री के राइट में इंसर्ट किया तो अनबैलेंस्ड हुआ। तो नाउ इन दिस केस हमें क्या करना है? 2 रोटेशंस करनी है, लेफ्ट एंड राइट। सबसे पहले हम लोग करेंगे लेफ्ट रोटेशन। ये गई हमारी लेफ्ट रोटेशन। इसके बाद हम करेंगे राइट रोटेशन। अब लेफ्ट रोटेशन करेंगे, 3 के बाद 2 आएगा, देन 1। वाई? बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1। हम लोग यहाँ पे ये नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 एंड 1 के लेफ्ट साइड में 2। नो, इट्स अ बाइनरी सर्च ट्री। वैसे नहीं याद हो तो ऐसे याद कर लो। And after the left rotation, we are going to perform the right rotation. The right rotation में क्या हो जाएगा? 2, 1 and then 3. The tree is balanced. Now the case number 4. Hello, ma'am. Yes. मैम आपने राइट रोटेशन कर रहे हैं तो उसमें लेफ्ट में नो एलिमेंट्स क्यों आ रहे हैं? लेफ्ट में एलिमेंट्स क्यों आ रहे हैं? लेफ्ट में देखो ना, अभी हम ये देखो हमारे पास ऐसा ट्री बना हुआ है, ठीक है। अब पहले हम इसके लेफ्ट रोटेशन करेंगे। लेफ्ट रोटेशन किए, अभी भी ट्री अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे अभी भी यहाँ पे डिफरेंस 2 का आ रहा है, इसलिए हम एक और रोटेशन करेंगे। एवीएल की रोटेशंस में 4 रोटेशंस है, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन। These 2 rotations required a single rotation. Now the third and fourth rotation, which are your left right and right left, these rotations require 2 rotations. तो अगर लेफ्ट के राइट में है तो पहले लेफ्ट रोटेट करेंगे फिर राइट। Now the next case is the case number 4, right left। अगर ट्री के राइट के लेफ्ट में कुछ एलिमेंट्स है, ट्री के राइट साइड के लेफ्ट साइड से, तब यहाँ पे 2 का बैलेंस फैक्टर कितना हुआ? 3 का 0 मैम। 3 का -1 1 minus 0 equals to 1। For this one, रूट का कितना होगा? True. It is 0, not 2. 0 minus 2 equals to -2। अब यहाँ पे भी हमें रोटेशन करनी है, तो यहाँ पे हम लोग कौन? यस यस अभिषेक सिंह। ओके मैम, ठीक है। Why are you disturbing the class? So यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? नो मैम, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग द क्लास। और जस्ट राइट लेफ्ट। तो अगेन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशंस होंगी कि लेफ्ट का राइट या फिर राइट के लेफ्ट में, तो दैट टाइम वी रिक्वायर 2 रोटेशंस। So in this case, first we are going to perform your right rotation and then we will perform the left rotation. अब हम इसकी राइट रोटेशन करेंगे तो क्या करेंगे? 2 ऊपर आ जाएगा एंड 3 नीचे। रोटेट करेंगे, 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे, तो क्या बन जाएगा? ये 1 2 एंड देन 3। अब इसके बाद एक इसके ऊपर क्या कर देंगे? एक लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन में 2 1 and then 3. So anyone is having any doubt in these 4 cases? यस मैम। Yes guys. मैम हम लोग यहाँ पे चाइल्ड के बात कर रहे हैं, 1 का चाइल्ड 3 है, 2 है। मैम हमको चाइल्ड को तो हमें चाइल्ड नहीं करना, हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट सब ट्री की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 1 में देखो
इसके लेफ्ट राइट सब ट्री में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है। लेफ्ट सब ट्री में कितने हैं? कोई भी नहीं है। लेफ्ट सब ट्री में कितने हैं? 0 है। तो अगर जीरो है हम मैम, जीरो। 1 का बैलेंस फैक्टर करेंगे तो 0 माइनस राइट साइड में कितने हैं? 2 है, तो -2। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे भी एक एलिमेंट होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक एलिमेंट होता, तो हम यहाँ पे 3 नहीं लेते, हम क्या करते? कोई भी एक पाथ फॉलो करते। या तो हम ये वाला पाथ फॉलो करते या फिर हम ये वाला पाथ फॉलो करते। तो जनरली जिस पाथ में ज्यादा नोड्स हो या फिर जो पाथ हमने रिसेंटली इंसर्ट किया हो, हम वो वाला पाथ फॉलो करते हैं। नाउ मूव टू द एग्जांपल। कंस्ट्रक्ट AVL ट्री बाय इंसर्टिंग नंबर 1 to 8. So guys, in your exam, don't act so smart or don't try to smart. तो हमेशा ट्राई करना कि अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ भी एग्जाम्पल, इसको स्टेप बाय स्टेप करो। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व दीज एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप। नाउ इंसर्ट करो 1 to 8 इन द AVL ट्री। Yes guys, insert number 1 to 8. Done class? Yes, ma'am. Okay. Those who are done, second example, construct a binary search, construct a AVL tree by inserting 8 to 1. 8 to 1. Abhishek Singh. Abhishek Singh. Yes, ma'am. Alok. Amod. Avinash. Harshit. Yes, ma'am. Jay Shankar. Yes, ma'am. Maniratna. Yes, ma'am. Manish Kumar. Ma'am. Nidhi Kumari. Nidhi Kumari. Yes, class, done with the program? Sorry, done with the example? Yes, ma'am.
Okay, now. Yes, ma'am. Okay, now I'm solving the example. Please just cross verify. Your very first example, insert 1 to 8. So your step number 1, insert 1. So now the height of this one is, height balance factor of this one is 0 minus 0. So till here your tree is balanced. Now your step number 2, insert 2. So as 2 is the greater than A, and where the AVL tree is follow the property of binary search tree, so 2 will be the right child. So now here the balance factor of 2 is 0, and the balance factor of this one is 0 minus 1 equals to minus 1. Now step number 3, insert 3. So simply 1, 2 and 3. So here the balance factor of 3 is 0, the balance factor of 2 is minus 1, and the balance factor of this one is minus 2. So here your tree is unbalanced. So as this is unbalanced due to right subtree, so we are going to rotate this tree. तो हम इसमें कौन सी रोटेशन करेंगे? We are going to perform one single left rotation. Right. लेफ्ट रोटेशन, राइट में तो ऑलरेडी है, वो लेफ्ट में रोटेट करेंगे. यस मैम. तो लेफ्ट में रोटेट करके your root will be 2, then here 1 and here 3. So here the balance factor is 0, 0 and here also 0. Now step number 4, insert 4. यहाँ पे 4 को insert किया. After inserting 4, the balance factor of 4 will be 0. The balance factor of 3 will be minus 1. Balance factor of 1 will be 0. And the balance factor of 2 will be 1 minus 2. Sorry, 0, 1, 2. 1 minus 2 equals to minus 1. Now the next one is the insert 5. So here is your 2, 1, 3, 4 and now 5. So again we are going to check the balance factor. The balance factor of this 5 is 0, minus 1 and here is the minus 2. तो अब हम कौन से 3 एलिमेंट्स को रोटेट करेंगे? We are going to rotate these 3 elements, 3, 4 and 5. We are going to rotate these 3 elements. तो अभी राइट साइड पे है, तो we are going to perform the left rotation. Just a second, guys. आ गया. तो here. सब जब इन 3 एलिमेंट्स को कौन सी रोटेशन करेंगे? लेफ्ट रोटेशन. तो हमारे पास रूट तो वही रहेंगे 2, यहाँ पे 1, बाकी का ट्री सेम रहेगा. अब हमें रोटेट करना है 3, 4, 5. तो यहाँ पे हमारे पास 3, 4, 5 में से रूट कौन सी बन जाएगी? 4 के लेफ्ट. 4 मैम. कीप क्वाइट गाइस. 3 and here 5. Keep quiet, otherwise बाकी सबको समझ ही नहीं आएगा. Now the next element is 6.
6 भी राइट साइड में आएगा 5 के, एज दिस इज द बाइनरी सर्च ट्री। तो अब यहाँ से फिर से कैलकुलेट करो बैलेंस फैक्टर। 6 का बैलेंस फैक्टर कितना है? यस ये मैम यहाँ पर तो ये बाइनरी वेक्टर ये अनबैलेंस्ड हो गया ना। कहाँ पे? 5 तक इंसर्ट किए हैं तो वहां तक तो अनबैलेंस्ड हो गया ना, तब उसको बैलेंस्ड कर लेंगे तब ना 6। ये किया ना बैलेंस यहाँ पे, ये किया तो था। मैम 435 435 बैलेंस हो गया, लेकिन ऊपर वाला फिर तो वो कहाँ पे, कहाँ पे? √2। हाँ वो भी तो बैलेंस ही है ना यहाँ तक तो। Before inserting 6 till now it is balanced, so 0, pay attention here, 0 1 this side। अब देखो यहाँ पे कोई भी पाथ फॉलो कर लो, या ये वाला या ये वाला। जनरली जिस पाथ में सबसे ज्यादा नोड्स होती हैं, जो पाथ सबसे लंबा होता है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो अगर हम ये लेते हैं 5 4 2 0 1 2, फिर अगर हम ये लेते हैं 3 4 2 0 1 2, तो दोनों साइड में 2 आ रहा है, तो कोई भी एक फॉलो कर लो। तो 1 - 2 equals to -1, it is balanced। So now the next element is 6। नेक्स्ट एलिमेंट इज 6। तो 6 भी कहाँ पे आएगा? यहाँ राइट साइड पे। अभी फिर से हम लोग बैलेंस वेक्टर चेक करेंगे। तो हियर इज द बैलेंस वेक्टर इज 0। द बैलेंस वेक्टर ऑफ 5 कितना आएगा? 5 का बैलेंस वेक्टर -1। तो 0, लेफ्ट चाइल्ड का 0, राइट चाइल्ड का 1, so 0 - 1 equals to -1। द बैलेंस वेक्टर ऑफ 4 -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे इसका 0 2 का, तो 4 का लेफ्ट साइड का 1 एंड राइट साइड का 0 1 2। तो 1 - 2 equals to -1। -1। नाउ हियर रूट का बैलेंस फैक्टर कितना होगा? -2। तो दिस साइड पे -2 0 एंड 1। अब यहाँ पे देखो हम लोग लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करेंगे। तो सबसे ज्यादा पाथ कौन सा लॉन्गर पाथ है? 2 4 5 6। तो हम ये पाथ फॉलो करेंगे। 0 1 2 3। तो 1 - 3 इक्वल्स टू कितना आ गया? -2। -2। अब देखो अनबैलेंस्ड हमारे पास नोड कौन सी है जो बैलेंस नहीं है? 2 1। 1 कहाँ से आ गया? 1 कहाँ से आ गया? कौन सी नोड ऐसी है जिस नोड पे हमारे पास ट्री अनबैलेंस्ड हुआ है? मैम ये 2 5 6 मैम। 2 पर में सुनो, पहले मुझे बोलने दो, मैंने जितना पूछा उतना बोलो पहले। देखो 2 हमारे पास अनबैलेंस्ड है। अब 2 के कौन सी साइड से अनबैलेंस हो रहा है? लेफ्ट साइड से, राइट साइड से? लेफ्ट साइड से। राइट साइड। लेफ्ट साइड से कहाँ बैलेंस है? लेफ्ट अनबैलेंस है। राइट साइड। ठीक है। राइट साइड। अनबैलेंस साइड। अनबैलेंस कौन सी साइड से? राइट साइड से। तो अगर हम राइट साइड। ओके, कौन से एलिमेंट को इंसर्ट करते ही अनबैलेंस हुआ है? 6 को। 6 को। Guys, please keep yourself muted. There is a lot of background noise. तो 6 को तुम लोग कौन सी साइड से 2 को फॉलो बैलेंस करेंगे? 6 की साइड से। अब हमें बैलेंस करने के लिए कितनी एलिमेंट्स चाहिए? ओनली 3। इन 3 को हम बैलेंस करेंगे। ये समझ में आया पहले सबको कि 2 4 और 5 को बैलेंस क्यों करना है? यस मैम। देखो अनबैलेंस, यस मैम। ओके, जिसको नहीं समझ में है समझना। अनबैलेंस्ड नोड कौन सी हमारे पास? 2। ठीक है। कौन से एलिमेंट को इंसर्ट करने पे अनबैलेंस हुई है? 6। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से लेके 6 की साइड पे जाएंगे। 2 के बाद जो भी हमें नेक्स्ट 2 नोड्स मिलेंगे 6 की साइड पे, हम उनको बैलेंस करेंगे। हम बैलेंस किसको करेंगे? 2 4 एंड 5। मुझे एक बार फिर से इसको ड्रॉ करने दो। 2 4 5
here is 1, here is 3, and here is 6. अब हम बैलेंस किसको करेंगे? 2, 4 एंड 5 को। अब ये बताओ इसमें कौन सी रोटेशन लगेगी? लेफ्ट रोटेशन करके रूट कौन सी बन जाएगी हमारी? 4. तो योर रूट विल बी 4 और 4 के लेफ्ट में क्या रहेगा? वही आपका 5 एंड 6 एंड 2 क्या हो जाएगा 4 का? लेफ्ट चाइल्ड 2 एंड 1। एंड अब इसमें जो भी 4 के चाइल्ड होंगे वो क्या बन जाएंगे आपके पास? 2 के राइट चाइल्ड। 4 का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो क्या बन जाएगा? 2 का राइट चाइल्ड। अंडरस्टूड गाइस? कैसे मैम? नो मैम, देखो एक तो पहले नहीं समझ आ रही मैम। देखो ये समझ में आ गया? अच्छा ओके, अगर 3 को छोड़ दिया जाए बाकी सारा समझ में आ गया? इतना समझ में आया? देखो हमने 4 को अगर रूट बनाया, लेफ्ट रोटेट किया था। मैम रूट बना के हाँ, रोटेट करने में दिक्कत हो रहा है। देखो इस वाली एग्जांपल पे देखो, हमने 4 को रूट बनाया। अगर हमने प्रीवियस एग्जांपल में जब रोटेट किया था, ये जब हमने यहाँ पे रोटेट किया था, 2 के जो ऊपर जो रूट थी वो 2 का हमारे पास क्या बन गया था? लेफ्ट चाइल्ड। बाकी का तो उसका राइट चाइल्ड ले रहा था। सेम वे जब 4 को लेफ्ट रोटेट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? 2 विल बी दी लेफ्ट चाइल्ड ऑफ दिस 4 एंड 5 विल बी दी राइट चाइल्ड। एंड 2 का ऑलरेडी चाइल्ड पहले 1 था, हमने 1 दे दिया। 5 का ऑलरेडी चाइल्ड 6 था, हमने उसको 6 ऐसे ही रहने दिया। अब ना प्रॉब्लम किस में आ रही है? दिस 3 में। 3 को कहाँ पे प्लेस किया जाए? तो ऑलवेज जब भी हम ऐसे रोटेट करके रूट बनाएंगे, उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो क्या बनेगा आपका? राइट ट्री का, सॉरी लेफ्ट सब ट्री का सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट। तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो वैसे देख लो, दिस इज द बाइनरी सर्च ट्री। तो 4, अगर 4 हमारे पास रूट है तो ये वाले सारे एलिमेंट 4 से छोटे होने चाहिए एंड इधर वाले एलिमेंट्स 4 से बड़े होने चाहिए। So yes guys, understood? मैम बाइनरी से समझ में आ रहा है मैम। Yes. मैम तो मैम ये 3 को तो 1 के राइट में भी तो शिफ्ट कर सकते थे ना? 1 के राइट में कैसे शिफ्ट कर देंगे बजरंग? दिस इज द बाइनरी सर्च ट्री। 1 के राइट में कैसे शिफ्ट हो जाएगा? वो 2 से छोटा होना चाहिए तो इधर आएगा। 1 के राइट मतलब अगर वो 2 से छोटा है तो। Now the next element is 7. अब बताओ 7 को इंसर्ट करने पर ट्री बैलेंस रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा मैम। No मैम। नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? -2, -1 एंड 0। तो अगेन हमें इन 3 को रोटेट करना पड़ेगा। कौन सी रोटेशन करेंगे? अगेन लेफ्ट रोटेशन। तो यहाँ पे हो गया आपका 4, यहाँ पे 2, 1 and here is the 3, 6, 5, 7. Now next is insert 8. तो 8 भी यही आएगा। तो अब बताओ ये ट्री बैलेंस्ड है या नहीं है? है मैम। अगेन नहीं है। है नहीं है? उसी नहीं है मैम। ओके चलो फिर से इसको बैलेंस करके बताते हैं। हाइट 0, इसकी भी 0, 2 की 1 - 1 0, 4 की अगर इस साइड से लेंगे 0 1 2 2, 5 की भी 0 होगी हाइट, 8 की भी 0, 7 की 0 -1 -1, 6 के लिए 0 1, इस साइड पे 0 1 2 -1। नाउ 4 का राइट सब ट्री, तो हम लॉन्गेस्ट पार्ट फॉलो करेंगे 0 1 2 3।
2 minus 3 equals to -1. Who said balance नहीं है ये ट्री? बैलेंस है मैम। मैम बोले थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अगर हमें डिलीट भी करना हो तो जैसे हम मैम लोग 1 सेकेंड मैम फर्स्ट लेट मी कंप्लीट। जैसे हमें डिलीट करना हो, आफ्टर डिलीटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट अगेन वी आर गोइंग टू चेक वेदर द ट्री इज बैलेंस्ड और नॉट। अब पूछिए किसको क्या डाउट है? यस मैम। मैम बोल रहे हैं कि मैम इस तरह से टाइम बहुत लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा इस तरह से। उसकी रिपीटेंटली कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी इसको ये बाइनरी सर्च रिपीटेंटली रिपीटेंटली बैलेंस करना, फिर ऑन बैलेंस करना, उस देखना, इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा और टाइम भी बहुत कंजप्ट होगा इसमें। बिल्कुल, ये तो आप मैन्युअली कर रहे हो तो आपको इतना पता है, बट अगर आप एक प्रोग्राम बनाओगे तो तब तो मैम और दिक्कत होगा, उसमें और प्रॉब्लम होगा। नो। So this is the mainly your self-sorting binary search tree. It's a self-balancing tree. So in the binary search tree, when your tree is either left tree or right subtree, तो उसमें क्या होगा, आपको सर्चिंग में बहुत टाइम लगेगा इन योर बाइनरी सर्च ट्री। क्योंकि अगर मान लो हम लोग 1 to 8 का बाइनरी सर्च ट्री बनाते तो क्या बनाते, 1 then 2 then 3 and so on up to 8। तो उसमें देखो हमें सर्च करने में बहुत टाइम लगता। तो पहले हम 1 पे जाते, 1 से 2 पे जाते, 2 से 3 पे जाते, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे। तो वर्स्ट केस में हमें कितना टाइम लगता, ON, वी गो ऑफ n। जितने हमारे पास टोटल नंबर्स थे हमें उतने कंपैरिजन करने पड़ते। बट यहाँ पे देखो अगर हमें किसको सर्च करना है, 8 को, तुम्हारे पास रूट क्या है, 4। सो वी नो दैट 8 is greater than 4। So 8 हमें कहाँ मिलेगा, we can find the 8 in this portion, right subtree। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, तो हमने ये 3 कंपैरिजन तो हमारे सीधे सीधे बच गए। Now next is the 6। So 8 is greater than 6। तो हम लोग फिर से यहाँ से कहाँ जाएंगे, to the right subtree। तो एक कंपैरिजन हमारे पास यहाँ बच गया, तो फिर से 7 पे गए, 8 is greater than 7 एंड सीधा यहाँ पे पहुंच गए। तो टू सर्च द 8 हमने 4 कंपैरिजन तो यहाँ पे सीधा सीधा स्किप किए हैं, बट इन योर नॉर्मल BST हमें ऑल 8 कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ते। This is the case when we are having only 8 elements. Now consider we are having thousands of elements. Having thousands of elements, the time you are saying that the time for implementing the binary search tree. So guys, now from your binary search tree, remove node number 6. From this tree, remove node 6. Again, I am drawing a tree for you, a neat and clean tree. 4, 2, 1, 3, 6, 5, 7, and then 8. Yes, guys, remove node 6 and this AVI tree. Purnima Kumari? Yes, ma'am. Ravindra? Ravindra Kumar Sharma? Rahul Kumar, 138? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
राजकुमार, Yes, ma'am. ऋषभ राज, Yes, ma'am. सदाशिव, यस सदाशिव, शिबू कुमारी, शिल्पी कुमारी, Yes, ma'am. सोनाक्षी राज, Yes, ma'am. सुनीता कुमारी, विपुल कुमार, Yes, ma'am. अभिषेक तिवारी, Yes, ma'am. अरमान अली, यस मैम। गौरव कुमार, Yes, ma'am. ओम प्रकाश, यस मैम। पंकज कुमार, Yes, ma'am. सौरभ त्रिपाठी, यस मैम। सुमंत कुमार, उदित राज, प्रेजेंट मैम। अभिराज कुमार, Yes, ma'am. अखिलेश कुमार झा, Yes, ma'am. अलसैफ अहमद, अमन कुमार, यस मैम। अंकित, आर्यन, आशीष कुमार, यस मैम। बजरंग, यस मैम। भूमिका, ब्रजेश, चंदन, यस मैम। दिव्यांशु कुमार, यस मैम। गगन शाह, आशीष कुमारी सोनी, Yes, ma'am. कुमारी प्रियंका, मनंजय, यस मैम। मनीष, Yes, ma'am. राहुल, Yes, ma'am. राजीव रंजन, यस मैम। रोशन कुमार, रवि कुमार, रिंकू कुमार, Yes, ma'am. रोहिणी, रुमा, श्रवण, सोनू यादव, Yes, ma'am. सोनू कुमार, यस मैम। उमंग कुमार, Yes, ma'am. विक्की विनायक, प्रेजेंट मैम। विनय चौधरी. Present, ma'am. Okay. So guys, here I am giving you some examples for your practice. So example number 1, just write down this Ma'am. quickly. Yes. मैम मेरा अटेंडेंस नहीं हुआ। Roll number, 130। name. FOE निधि। कहाँ थे जब अटेंडेंस हुआ? क्या मैम? Okay. 48, 35, 22. Guys, just write down this quickly. 22, 17, 9, 15, 1, 36, 54, 93, 78, 81, 70, and 60.
मैम यस मैम ये वाला जो आप करा रही हैं मैम, इसका कोई ट्रिक है क्या? ट्रिक जो देखो कम समय में